हेलो स्टूडेंट्स। ਅੱਜ ਆਪਾਂ C++ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਬਜੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਬਜੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਫੀਚਰਸ ਔਰ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਆਬਜੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨੋਟਸ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ basic concepts of object oriented programming। ਸੋ object oriented programming ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ objects। objects are often used to model real world entities। reality ਨੂੰ represent ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ objects ਨੂੰ use ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। real world entities reality ਨੂੰ represent ਕਰਦੇ ਆ objects। an object can be a person, ਦੇਖੋ place or anything you see in the real world। ਆਪਾਂ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰਸਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਪਲੇਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਰੀਅਲ ਵਰਲਡ ਆਬਜੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਬਜੈਕਟਸ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਆਰ ਮਾਡਲਡ ਇਨ ਅ ਸਿਮਿਲਰ ਮੈਨਰ ਆਫਟਰ ਦਾ ਰੀਅਲ ਵਰਲਡ ਆਬਜੈਕਟਸ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਰੀਅਲ ਵਰਲਡ ਆਬਜੈਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਪਲੇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲੈਪਟਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫੋਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਾਡਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। because they possesses attributes as well as behavior। ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੁੰਦਾ। each object has an identity। ਹਰ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ that distinguishes it from all other objects। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਬਜੈਕਟਸ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਨੇ ਆ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਪੈਨ ਹੈ, ਉਸ ਪੈਨ ਦੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਪੈਨ ਦਾ ਕਲਰ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਪੈਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੀਅਲ ਵਰਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, C++ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ C++ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਿੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ C++ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਾਟਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਟਾ ਮੈਂਬਰਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਥਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਹਰ ਆਬਜੈਕਟ ਜਿਹਦੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਔਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਜੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਰਸਟ ਕਨਸੈਪਟ। ਐਂਡ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਕਲਾਸ। ਐਕਚੁਅਲ ਆਬਜੈਕਟ ਉਹਦੀ ਬਣੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ ਬਣੀ ਹੋਏਗੀ। A class is a group of objects with the same attributes and common behavior। ਹੁਣ ਕਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਫਸਟ ਈਅਰ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਸਟਰਸ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਮੰਨ ਲਓ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਜਾਂ C++ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਬਜੈਕਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਮਨ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਤੇ ਕਾਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੋਗਾ। ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਮਨ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ,
स्टूडेंट का नेम, फादर नेम, मदर नेम, ਉਹਦੀ फीस, ਉਹਦੇ रिसिप्ट्स, ਉਹਦੇ बैलेंसिस, ठीक है। और ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ कॉमन बिहेवियर, मतलब कॉमन ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ फंक्शन ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ कि एक स्टूडेंट ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, फीस जमा ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, पेपर ਦਿੰਦਾ, मार्क्स ਲੈਂਦਾ ਹੈ, मार्क्स ਨੂੰ ਨਾਲ ਉਹਦੀ डिवीजन ਬਣਦੀ है। सो ऐसिया चीज़ां बनाने के लिए ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ प्रोग्रामिंग करांगे ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਉਹਦੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਲਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। इट इज जस्ट लाइक ए टैंपलेट। टैंपलेट मतलब डिजाइन होंगे, और ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट भी मीनस एक डिजाइन होंगे, एक रियलिटी नू रिप्रेजेंट करने वाला डिजाइन टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। जो तुम कहने असीं इदां दे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं, असीं इदां दी प्रोग्रामिंग करन जा रहे हैं, इदां दे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं, तो फिर तुहानू एक ब्लूप्रिंट तैयार करना पैंदा है। वो ब्लूप्रिंट इत्थे क्लास है। सो ऑब्जेक्ट्स हैविंग सेम एट्रीब्यूट्स एंड शेयरिंग कॉमन बिहेवियर constitute a class. Classes provide us a set of common definitions for similar type of objects. So classes ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ common set of definition ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ provide ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ similar type of objects। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। 20 ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਲਾਸ ਬਣਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਉਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 20 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਕਾਮਨ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਨੇ, ਕਾਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਡਾਟਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਹੈ ਕਲਾਸ। ਸੋ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸੈਪਟ ਉਹ ਹੈ ਇਨਕੈਪਸੂਲੇਸ਼ਨ। ਇਨਕੈਪਸੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨਾ, ਕੁਝ ਕਿਤੇ ਭਰਨਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ। ਇੱਕ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈਗੀ that binds together data and functions that manipulate that data। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਡਾਟਾ ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ पर्टिकुलर किसी फंक्शन के अंदर ही काम करे। सारा डाटा, सारे फंक्शन एक जगह पर काम नहीं करते हैं, सारे डाटा सारे फंक्शन एक जगह पर नहीं रखा जाता। सिर्फ जिस जो चीज़ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट लिए चाहिए है वो डाटा तो वो फंक्शन इत्थे एक जगह के इकट्ठे कर देने, उन्होंने इनकैप्सूलेट करना कहना है। इट कीप्स द डाटा सेफ फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरफेरेंस एंड मिसयूज। ये डाटा को सेफ रखते हैं, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस एंड मिसयूज ना होए। क्योंकि जो असी सी वगैरह च काम करते सी ना, जो असी नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग च काम करते सी, उत्थे डाटा की मिसयूज या होर किसी फंक्शन का करंट फंक्शन या करंट डाटा इंटरफेरेंस होने का चांसिस रहते सी। सो इन अदर वर्ड्स इनकैप्सुलेशन इज रैपिंग अप ऑफ डाटा एंड रिलेटेड फंक्शन इन ए सिंगल यूनिट कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। दूसरे शब्द ये कहा जा सकता है कि इनकैप्सुलेशन का मतलब लपेटना किसी चीज़ को, कि डाटा नूं ते उहदे नाल रिलेटेड फंक्शनस नूं एक सिंगल यूनिट विच लपेट देना, जिहनूं असीं ऑब्जेक्ट कहने। इन C++ द कंसैप्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन इज इंप्लीमेंटेड यूजिंग ए क्लास। जे तुसीं C++ विच इनकैप्सुलेशन करना चाहते तो तुहानूं इस काम दे लई क्लास बनाउणी पेगी। क्लास दे विच तुहानूं मैं पहले दस्सिया है कि एट्रीब्यूट ते बिहेवियर नूं इंप्लीमेंट करन दे लई असीं declarations करते हैं। With encapsulation data hiding can be accomplished। एक गल दा ख्याल रखो, सब तो बेस्ट, सब तो इंपॉर्टेंट गल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दे विच डाटा हाइडिंग है, सेफ्टी ऑफ डाटा है, और इनकैप्सुलेशन उस नूं इंप्लीमेंट करन दे विच साडी हेल्प करदी है। डाटा हाइडिंग कैन बी अचीव्ड बाय मेकिंग डाटा ऑफ ए क्लास एज अ प्राइवेट। जो प्राइवेट है ना, ये तुहानूं पता हैगा, ये एक्सेस स्पेसिफायर है या एक्सेस मॉडिफायर है ना। सो प्राइवेट, पब्लिक ते प्रोटैक्टेड, तीन एक्सेस मॉडिफायर या एक्सेस स्पेसिफायर जिहड़े ने वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है ने, जिवें C++, जावा है, इन्हां दे विच इन्हां नूं यूज़ किया जाता है। तो जेकर तुसीं किसी भी डाटा मैंबर नूं या मैंबर फंक्शन नूं प्राइवेट सैक्शन के अंदर डिकलेयर करते हो, डिफाइन करते हो, तो वो डाटा हाइडिंग हो जाती है। क्योंकि प्राइवेट नूं कदे भी आउट ऑफ क्लास यूज़ नहीं किया जा सकता, क्लास तो बाहर उन्हें चलना ही नहीं, उन्हें सेफ रहना है, ठीक है। सो इस करके वो कहता जे तुसीं डाटा हाइडिंग अचीव करना चाहते हो तो तुसीं डाटा नूं प्राइवेट के अंदर लिख लो, ठीक है, क्लास के अंदर लिख लो, ठीक है। सो इस तो बाद साडे कोले नंबर 4 जिहड़ा हैगा
वो है डाटा एब्सट्रैक्शन। एब्सट्रैक्शन का मतलब होता है एब्सट्रैक्ट, एब्सट्रैक्ट मतलब थोड़ा थोड़ा हिस्सा, थोड़े छोटा पार्ट, है ना। एब्सट्रैक्शन एक टेक्निक है। एब्सट्रैक्शन इज ए प्रोसेस, एक प्रोसेस है दैट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द एसेंशियल फीचर्स विदाउट इंक्लूडिंग द इंटरनल डिटेल्स। हुण मैं आम तौर पर की होंदा हैगा, मैं तुहानूं कई बार एक एग्जांपल दिना, मैं कई बार स्टूडेंट्स को एग्जांपल दिना कि तुसी यूज़ करदे हो किसी प्रोग्राम नूं, तुसी आही जिहड़ा मेरा वीडियो देख रहे हो, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं की कीता हैगा, मैं एक प्रेजेंटेशन बनाई है। मैं की कीता हैगा तुहाडे सारे सिलेबस के मुताबिक, तुहाडे सारे कॉन्सैप्ट के मुताबिक मैं देखा जो चीज़ तुहानूं सूट करती है वो मैं तुहाडे सामने ले आया। जो चीज़ तुहानूं सूट करती है मैं एब्सट्रैक्शन कर ली, जिन्नी चीज़ तुहाडे लिए जरूरी है मैं वो चीज़ इत्थे तुहानूं प्रोवाइड कर दी। यही एब्सट्रैक्शन है। इदां ही प्रोग्रामिंग के दौरान हुंदा है। प्रोग्रामिंग के दौरान भी यही चीज़ नूं असीं एज अ एब्सट्रैक्शन लैंदे आ। असीं एज अ एब्सट्रैक्शन लैंदे कि हुंदा कि मान लो तुसीं क्लास बनाई, क्लास के अंदर तुसीं जिहड़े हैगे ने डाटा मैंबर फंक्शन बनाए। हुण तुसीं चाहते हो कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ दो फंक्शन है बस ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ यूज़र यूज़ कर लवे, बाकी सारी चीज़ बैकग्राउंड 'ਚ ਚੱਲੇ। ठीक है, बहुत सारे तुहाडे ऐप हैगे ने, बहुत सारियां तुहाडियां इस तरह के सॉफ्टवेयर हैगे ने जिन्हां दा केवल और केवल तुसीं जो मतलब इंटरफेस है उन्हों यूज़ करदे हो। फॉर एग्जांपल जो WhatsApp है, WhatsApp पे तुहानूं कोई चीज़ आ गई, तुसीं सेंड कर ली, तुहानूं एब्सट्रैक्ट पार्ट दिता गया हैगा। बैकग्राउंड ते WhatsApp किवें काम करदा हैगा, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट। सो दैट्स वाई एब्सट्रैक्शन जो है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। So you need not to include any internal detail. What you have to do is just find out okay, what is the essential feature and then provide that to the user. In object oriented programming, complexity is managed by using the concept of abstraction. बहुत complex program बनते हैं नहीं, तो जो complex program user ਨੂੰ ਪਕੜਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ user ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ use ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ abstract part ਦਿੰਨੇ ਆ। In object-oriented programming, classes use the concept of data abstraction. Object-oriented programming ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ classes ਨੇ ਨਾ, ਇਹ data abstraction ਦਾ concept use ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। A class encapsulates a relevant data and functions that operate on that data by hiding the complex implementation detail from the user। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਸ। ਔਰ डाटा किमें यूज़ किया जा रहा, फंक्शन किमें किया जा रहा, तुहानूं सिर्फ फंक्शन प्रोवाइड कर दिते जाते हैं ने, तुसीं उन्होंने कॉल करते हो, तुसीं उन्हां दे नाल काम करते हो। इंटरनल वो की फार्मूला लगा, किस तरह उन्हें किया है, सानूं इहदी जिहड़ी हैगी आ वो टेंशन लैण दी जरूरत नहीं हैगी। ठीक है, सो एब्सट्रैक्शन प्रोवाइड बेनीफिट बोथ टू द यूजर एज वेल एज द प्रोग्रामर ऑफ द क्लास। एब्सट्रैक्शन के दोनों नूं फायदे हैगे। यूजर ਨੂੰ भी फायदा है, प्रोग्रामर ਨੂੰ भी फायदा। की फायदा? यूजर gets benefits because they don't need to worry about the complex implementation details। यूजर ਨੂੰ benefit ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ यूज करना, बस ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਆਲ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੋ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਟੋਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, नो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, यूजर ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ जरूरत नहीं है, यह सॉफ्टवेयर का काम है। प्रोग्रामर टेक्स एडवांटेज ऑफ डाटा एब्सट्रैक्शन बाय मॉडिफाइंग द इंटरनल लॉजिक ऑफ द फंक्शन विदाउट चेंजिंग द इंटरफेस। हुण तुसीं देखदे हो तुहाडे कोले तुहाडे एप्लीकेशन दे अपडेट्स आंदे ने, वो अपडेट्स किवें कीते गए, तुहानूं की हुंदा, तुहानूं इंटरफेस मिलिया होया, तुसीं अपडेट कर दिंदे हो, उही इंटरफेस तुहानूं फिर मिल जांदा, तुसीं काम करी जा रहे हो। पिछों बैकग्राउंड 'ਚ उन्होंने की अपडेट कर दिता, सानूं इस चीज़ बारे पता नहीं लगता। और प्रोग्रामर नूं इस चीज़ नूं दस्सण दी जरूरत भी नहीं है। प्रोग्रामर नूं यही बेनीफिट है कि उन्होंने दस्सण दी जरूरत नहीं है कि मैं की मॉडिफाई किया है, किदां किया है, उन्हें इंटरफेस तुहाडा हो रहन देना। बैकग्राउंड 'ਚ उन्हें हो सकता है पहला कोई डाटाबेस होर लगाया सी, हुण कोई डाटाबेस होर लगाता, डाटा नूं स्टोर करन दा जिहड़ा कॉन्सैप्ट सी पहला कुछ होर सी, हुण कुछ होर कर दिता। आई मीन टू से कि दोनों नूं ही फायदा है। यूजर ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ नहीं है कि मेरे सामने की आ रहा है, मैनू जो मैं पहला यूज़ कर रहा ਸੀ मैनू ਉਹੀ मिल रहा। प्रोग्रामर ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ कोई टेंशन नहीं है कि यूजर ਨੂੰ सारा कुछ समझाना पेगा, नथिंग लाइक दैट। सो एब्सट्रैक्शन का यह फायदा है। ठीक है, सो उस तो बाद नंबर 5 आती इनहेरिटेंस। ਇਹਦਾ कॉन्सैप्ट है इनहेरिटेंस। दिस इज एन इंपॉर्टेंट फीचर
of object-oriented programming. It is a process of deriving a new class from an existing class without modifying it. कई बार पता की होंगे, एक क्लास तुसीं बनाई, चलाई, प्रोग्राम च यूज़ की, तुहानूं बड़ी पसंद है वो क्लास, उस तरह की एक क्लास तुहानूं होर बनाउणी पैंदी हैगी है। तुसीं दोबारा तो उस क्लास सारी नूं बनाओ, ये बड़ी मुश्किल वाली गल है और बड़ी बोरिंग गल हैगी। थोड़ी बहुती चेंज है, क्लास उस तरह की है, ठीक है ना। ये तो एक प्रोसैस है, एक नवीं क्लास नूं लैना एक एग्जिस्टिंग क्लास दे विचों, सो उहनूं इनहेरिटेंस कहंदे हैगे ने। क्लास बनी है, मैं उहनूं कुछ नहीं करना चाहुंदा, मैं सिर्फ चाहना कि उही क्लास किसी नवीं क्लास के तौर पर भी काम करे, पर मैं दोबारा बनाउणी नहीं है। द न्यू क्लास इज कॉल्ड डिराइव्ड क्लास और सब क्लास और चाइल्ड क्लास। जी नवीं क्लास बनाओगे ना, उन्होंने डिराइव्ड क्लास, सब क्लास या चाइल्ड क्लास बोलते हैं। एंड द एग्जिस्टिंग क्लास इज कॉल्ड बेस क्लास, सुपर क्लास और पेरेंट क्लास। और जी एग्जिस्टिंग क्लास है ना, उन्होंने बेस क्लास कहते हैं, उन्होंने सुपर क्लास कहते हैं, उन्होंने पेरेंट क्लास कहते हैं, ठीक है। सो क्योंकि ऑलरेडी पई हुई है, वो तो बनी हुई है ना, वो तो टेस्टेड है, वो तो सही चल रही है, ठीक है। द डिराइव्ड क्लास इनहेरिट्स ऑल द फीचर्स ऑफ द बेस क्लास एंड यू कैन आल्सो ऐड सम न्यू फीचर्स इनटू इट। एक गल ख्याल रखो, जी डिराइव्ड क्लास होंगी ना, जी तुसीं किसी दूजी क्लास तो लैके बना रहे हो, उन्हें तुहाडी बेस क्लास के सारे फीचर तुहानूं प्रोवाइड कर देने, भावें वो डाटा मैंबर सीगे, भावें वो मैंबर फंक्शन सीगे, ठीक है। और वो सारे तो मिल ही जाने, तुसीं नवें भी ऐड कर सकते हो। इनहेरिटेंस प्रोवाइड्स एन इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन टू द आइडिया ऑफ रीयूजेबिलिटी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की यह भी खासियत है, यह भी एक फीचर है ना रीयूजेबिलिटी। और रीयूजेबिलिटी करने के लिए सब तो वधिया हेल्प तुहाडी इनहेरिटेंस करदी है। वंस ए क्लास हैज़ बिन रिटन, तुसीं एक बारी क्लास बना ली, उन्होंने कंपाइल कर लिया, उहदे च अगर कोई एरर आया तो उन्होंने डीबग कर लिया, द क्लासेस ड्राइव्ड फ्रॉम इट कैन रीयूज द फीचर्स ऑफ दैट क्लास। तुसीं एक क्लास है बहुत परफेक्ट क्लास बना दी, हुण उहदे तो तुसीं एक नवीं क्लास जिहड़ी हैगी है वो बनाउणी है, बना ली, उहदे च कुछ नवां ऐड कर लिया। सो यह सारा कुछ जिहड़ा हैगा तुहानूं उत्थे मिलूगा। यह प्रोसैस है, एक पुरानी क्लास तो नवीं क्लास बनाउणी, पुरानी क्लास के सारे फीचर नवीं क्लास यूज करने, यह सारे कंसैप्ट करने के लिए तुहानूं इनहेरिटेंस काम आती है। ये पूरा एक चैप्टर सानूं मिलिया होया, असीं पढ़िया भी होया। इनहेरिटेंस दी 5 टाइप्स ने, मोस्टली 5 बनाए गए हैं, जिवें C++ 5 चलदियां ने। सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लैवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हायरार्कीकल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ठीक है। सो 5 टाइप्स जिहड़ियां इत्थे आ जांदियां ने। सो इनहेरिटेंस सी साडे कोले 5 नंबर। 6 नंबर हैगा पॉलीमॉर्फिज्म, बड़ा परफेक्ट कंसैप्ट हैगा पॉलीमॉर्फिज्म। दिस इज वेरी पावरफुल कंसैप्ट दैट अलाउज द डिजाइनिंग ऑफ वेरी फ्लैक्सीबल एप्लीकेशन। बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर, बहुत अच्छे प्रोग्राम डिजाइन करने में पॉलीमॉर्फिज्म तुहाडी हेल्प करता है। द वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 Greek words, poly which means many and morphos which means forms. So polymorphism means the ability to take many forms. C++ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਗੁਏजेस यूज़ करते हैं, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਕਨਸੈਪਟ ਮਿਲਦੇ ਆ। मैं उन्होंने कॉन्सैप्ट का नाम लवांगा, जिमें कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग होगी, फंक्शन ओवरलोडिंग होगी, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होगी। कंस्ट्रक्टर और फंक्शन ओवरलोडिंग सिमिलर ही होंगे ने, पर कंस्ट्रक्टर और फंक्शन च थोड़ा फर्क होता है, ठीक है। सो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होगी, है ना, ए होगी, यह भी पॉलीमॉर्फिज्म है। एक वर्चुअल फंक्शन होंगे ने, प्योर वर्चुअल फंक्शन होंगे ने, यह भी पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म जो है उहदियां 2 मेन टाइप्स ने, एक स्टैटिक ते एक डायनैमिक पॉलीमॉर्फिज्म। सो इसी नूं ध्यान नाल देखना है। कहंदा सो पॉलीमॉर्फिज्म मीन द एबिलिटी टू टेक मैनी फॉर्म्स। इन OOP इनहेरिटेंस सपोर्ट्स पॉलीमॉर्फिज्म। इनहेरिटेंस भी पॉलीमॉर्फिज्म नूं सपोर्ट करदी है। सो पॉलीमॉर्फिज्म कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस टू रिस्पॉन्ड टू द सेम रिक्वेस्ट ईच इन इट्स ओन वे। एक तरीके दे नाल हाँ तुसीं फंक्शन ओवरलोडिंग करदे हो, एक ही फंक्शन का नेम है, वो या तो आर्गूमेंट की टाइप डिफरेंट है या नंबर ऑफ आर्गूमेंट डिफरेंट ने। तुसीं जिवें ही मान लो सम नाम का फंक्शन बनाया, 4 फंक्शन बनाते सम नाम के, नेम सेम हो गया, रिटर्न टाइप भी सपोज सेम हो गई, आर्गूमेंट डिफरेंट हो गई, तो जो तुसीं डिफरेंट आर्गूमेंट पास करके फंक्शन को कॉल करना ना, उन्हें ऑटोमैटिकली उस फंक्शन को कॉल करना जिहड़ा उहनूं मैच करदा। द मेन एडवांटेज ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इज दैट इट रिड्यूसिस कंपलैक्सिटी बाय अलाउइंग सेम नेम टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। काम अलग अलग हो रहे हैं, नेम सेम यूज़ किया जा रहा है, ये कंपलैक्सिटी घट जाती हैगी। सानू
फंक्शन के बहुत ज़्यादा नाम रख के उन्होंने याद रखने की जरूरत नहीं पैंदी। इन C++, polymorphism can be implemented using function overloading, operator overloading and virtual function। ਹੁਣ ਜੇ मैं function overloading ਤੇ operator overloading ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, static polymorphism है, ये पहली टाइप है ਇਹਦੀ। ਇਹ कंपाइल टाइम polymorphism भी ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ठीक है। और एक वर्चुअल फंक्शन है ने, प्योर वर्चुअल फंक्शन कॉन्सैप्ट आता है, एब्सट्रैक्ट क्लासेस का कॉन्सैप्ट आता है, वो ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗੇ डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। वो है डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਪੋਲੀਮॉर्फिज्म। ਨੰਬਰ 7 ਹੈਗਾ ਬਾਈਂਡਿੰਗ। ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਮਤਲਬ ਜੋੜਨਾ, ਲਿੰਕ ਅਪ ਕਰਨਾ। ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਦ ਲਿੰਕਿੰਗ ਆਫ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਟੂ ਦ ਕੋਡ ਆਫ ਦ ਫੰਕਸ਼ਨ ਟੂ ਬੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਡ in response to the function call। ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਮਤਲਬ ਲਿੰਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਲਿੰਕ ਅਪ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਆਫ ਟੂ ਟਾਈਪਸ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟੈਟਿਕ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਔਰ अर्ਲੀ ਬਾਈਂਡਿੰਗ, डायनेमिक बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग। in this binding, first ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ static binding or early binding। in this binding the linking of function call to the code of the function to be executed in response to the function call is made at the compile time। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦਾ ਲਿੰਕ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿੰਕਿੰਗ ਹੈ, ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ अर्ਲੀ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਜਾਂ ਕੰਪਾਈਲ ਟਾਈਮ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਜਾਂ ਸਟੈਟਿਕ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕਿਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡਸ ਦਿਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਪਰਫਾਰਮਡ ਐਟ ਕੰਪਾਈਲ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ, ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਕੰਪਾਈਲ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੈਟਿਕ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਜਾਂ अर्ਲੀ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। और दूसरी है कि डायनामिक बाइंडिंग, रन टाइम बाइंडिंग, एग्जीक्यूशन टाइम बाइंडिंग या लेट बाइंडिंग ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। in this binding the linking of function call to the code of the function to be executed in response to the function call is made at run time। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਲਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਰਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਕੰਪਾਈਲ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਤਲਬ ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਨ ਟਾਈਮ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਅਪ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਲਿੰਕਿੰਗ, ਜੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਾਡੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕਿੰਗ ਰਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਡਾਇਨਾਮਿਕਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਔਰ ਲੇਟ ਬਾਈਂਡਿੰਗ। ਸੋ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਟਸ਼ੈਲ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ कि बाइंडिंग मतलब लिंकिंग करना है बेटे किसी भी फंक्शन नूं उहदी फंक्शन कॉल नूं उहदी डिफिनीशन देना। सो नंबर 8 हैगा मैसेज पासिंग। सो इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कम्युनिकेट विद ईच अदर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दे विच अलग अलग तरह के जिहड़े ऑब्जेक्ट्स है वो एक दूजे दे नाल कम्युनिकेट करते हैं, किहड़े कॉन्सैप्ट नूं यूज करके? मैसेज पासिंग। आप एक फंक्शन कॉल करना है, आप मैसेज पासिंग करते हैं। एक फंक्शन कॉल करिए, उस फंक्शन में आपने लिंकिंग करनी हैगी है, उस फंक्शन मतलब असीं चाहते हैं कि फंक्शन यूज करिए, तो फिर तुसीं मैसेज पासिंग का कॉन्सैप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज करती है। ऑब्जेक्ट्स कम्युनिकेट विद ईच अदर इन द सेम वे एज ह्यूमन बीइंग्स एक्सचेंज मैसेजेस अमंग दैमसेल्व्स। जो असीं किसी फंक्शन कॉल करते हैं ना, मैसेजेस पास किए जाते हैं और उन्होंने मैसेजेस के नाल वो फंक्शन जो किया जाता है ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟਸ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਹੇਅਰ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟਸ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ। ਸੋ ਇਹੀ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਬਣਾਉਣੀ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਔਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ
सो इसे चीज़ के नाल रिलेटेड शायद तुहाडी कोई डाउट होएगी तो वो क्लीयर हो जाएगी। तो मैं इत्थे पहला ही जिहड़ा हैगा तुहाडा फंक्शन बनाना वो मैं खाली 1.cpp के नाम से प्रोग्राम स्टार्ट करना। तुसीं देखो उपर आ गया। फुल स्क्रीन करने के लिए ओनली F5 दबा लो तो फुल स्क्रीन हो जाएगी। ये मैं इंस्टॉल की हुई है टर्बो सी। सो टर्बो C++। सो टर्बो C++ ਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟੂ ਡਿਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟ class and object creation and their use। ठीक है। सो सब तो पहला तुहानू पता है असी कोई भी C++ प्रोग्राम बनाने हैं उहदे अंदर जिहड़ियां रिक्वायर्ड फाइल्स हैगियां ने, खास करके हाइडर फाइल्स iostream.h, ठीक है, इनू इनकलूड कर लेदा है। हैश इनकलूड conio.h इनू कर लेदा हैगा। ठीक है। तो इत्थे मैं एक तुहानू क्लास बनानी, ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाने जा रहा है। मैं तो छोटी जी क्लास ही बनावांगा। मैं तुहानू दसना चाहुंदा भी क्लास बनती किद्दां हैगी है, क्लास के अंदर इनकैप्सूलेशन किस तरह होंदी हैगी है और एब्सट्रैक्शन किस तरह होंदी हैगी है और किद्दां यूज़ करना है। क्लास में फर्स्ट जी हैगी वो बना देना है काली के नाम की क्लास पढ़ने की। चलो कोई नाम रख लो, कोई भी रेलीवेंट क्लास नेम रख सकते हो। सो ये अंदर मैं प्राइवेट एक जिहड़ा हैगा वो शब्द यूज़ करता। देखो नाल नाल वाइट हो जाते जेडे रिजर्व वर्ड है ना C++ दे वो इत्थे वाइट दे विच नज़र आउणगे। ठीक है। जिहड़े यूजर डिफाइंड है वो ग्रीन दे विच नज़र आउणगे। जिहड़े प्री डिफाइंड हैगे वो भी मतलब जिहड़ा हैगा जिवें iostream.h वगैरह हैगी वो डिफरेंट कलर च नज़र आ रही है। ये सैटिंग हो जाती है, तुसीं खुद भी सैट कर सकते हो, पर ये डिफॉल्ट में इनू यूज़ कर रहा है। हुण मैं प्राइवेट के अंदर ना बेटे इत्थे डाटा मैंबर्स देंगा। मैं इत्थे डाटा मैंबर्स देना चाहुंदा हैगा। डाटा मैंबर दे विच मान लो मैं सिर्फ एक डाटा मैंबर देना int x। दिस इज डाटा मैंबर जिन्हों असी की कह सकते हैं एट्रीब्यूट। इनू की कहते हैं एट्रीब्यूट कह देने हैं। ठीक है। सो ये नाल ही तुसी जिहड़ा हैगा मैं इहदी इंप्लीमेंटेशन करनी है। मैं चाहना एक्स की मैनू वैल्यू पूछे तो एक्स की वैल्यू नू डिस्पले करे। ठीक है। तो मैं इहदे लई पब्लिक सैक्शन च जाना है, पब्लिक सैक्शन दे विच जाना है। ठीक है। इत्थे वॉइड करदा है, वॉइड करके इहदे विच मैं इनपुट फंक्शन इनपुट करनी क्योंकि आपां इहनूं आपां बना देना है। ठीक है। इत्थे मैं कहना है सी आउट और इहदे अंदर ही मैं मतलब जिहड़ा है तुहानूं पता सी आउट दे नाल आउटपुट आउंदी हैगी स्क्रीन दे उपर। फिर तो इहदे बारे भी कर लांगे, सी आउट सी दा भी एक प्रोग्राम बना देंगे। सो \n मैं आम तौर पर लगाना है न्यू लाइन में जाने वास्ते। सो मैं कहना है एंटर वैल्यू फॉर एक्स। ए मैं इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं बेसिकली। इत्थे हो की रहा है इंप्लीमेंटेशन हो रही हैगी है, जिन्हों तुसी की कह रहे हैं इंटरफेस डिवेलप कर रहे हैं। ठीक है। तुहानूं पता की चाहिए सीगा एट्रीब्यूट और उन्हां दी यूज इंप्लीमेंटेशन। दिस इज इंटरफेस। ठीक है। सो मैं फंक्शन बनाया है मैथड है ये और ये अंदर मैं सी इन कर देना है, इनू इत्थों वधाउणा है एक्स। तुहानूं पता की लगाया मैं इत्थे मैं की लगाया है मैं आउटपुट ऑपरेटर लगाया, इत्थे मैं इनपुट ऑपरेटर, इत्थे इनू इंसरशन ऑपरेटर और इनू एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर भी बोल देने हैं। इनू मैं फंक्शन नू बंद कर दिता, इनपुट फंक्शन बंद हो गया। एक मैं इतों रिटर्न कुछ नहीं करना, मैं आउटपुट फंक्शन बना देना है। आउटपुट एक फंक्शन बनता है और ये अंदर ही मैं की करता है मैं इनू प्रिंट करा देना है। सी आउट करते हैं द वैल्यू ऑफ एक्स इज, इत्थे मैं एक्स की वैल्यू नू प्रिंट कराना है और एक ब्रेस होर बंद करता है जिथे मैं क्लास नू बंद करा तो एंड विच सैमी कॉलन लगाना है। एक क्लास बन गई मेरे को, हले मैं कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, हले ये चलूगी नहीं। दिस इज जस्ट अ टैंपलेट। मैं एक टैंपलेट क्रिएट कर लिया, वो प्राइवेट ते पब्लिक मैं दो सैक्शन बनाते। प्राइवेट सैक्शन दे विच मैं एक डाटा मैंबर रहा है जिन्होंने मैं एट्रीब्यूट कह रहा है और आ इंटरफेस डिवेलप कर रहा है जिन्होंने मैं एब्सट्रैक्ट पार्ट के तौर पर बाहर यूज़ करांगा।
सो ये एंड ऑफ क्लास हो गया है इत्थे जिथे मैं ब्रेस बंद कर दी, क्योंकि यह वाली जी ब्रेस सी इतों शुरू हुई उपरों वो बिल्कुल एंड से जाके बंद हुई है, जिसके सैमीकोलन लगा और इस क्लास का एंड हो गया। ठीक है, प्राइवेट और पब्लिक में इतने दिते सी। पब्लिक के जो मैं फंक्शन स्टार्ट किया, फंक्शन की बॉडी के लिए मैनू ब्रेस स्टार्ट करनी पई और ब्रेस क्लोज करनी पई। सो इस तरीके के नाल मेरे को की है, मेरे को क्लास क्रिएशन का जरा कॉन्सैप्ट बनाता, ये अंदर मैं एट्रीब्यूट और बिहेवियर या जिन्होंने मैं इतने इंटरफेस भी किया सीगा, इंटरफेस और बिहेवियर है ना, बिहेवियर भी आप इतने जो है वो बना दिता। सो हुण गल आ गई एक्सट्रैक्शन की, कि इतों आप एबस्ट्रैक्ट कर लिए किसी चीज़ को एबस्ट्रैक्शन करनी हैगी है, तो तुसीं हमेशा तुहानूं पता है कि तुहाडा प्रोग्राम काहदे नाल चलदा हैगा, मेन दे नाल। इतों तुसीं मेन च चले जाओ, ब्रेस स्टार्ट करो, क्लीयर स्क्रीन कर लो एक बारी, ताकि इससे प्रोग्राम चलन तो पहला अगर कोई स्क्रीन के उपर कुछ होर आ रहा होगा तो सारा कुछ क्लीयर हो जाऊगा, सिर्फ तुहाडा यही प्रोग्राम की आउटपुट तुहानूं स्क्रीन पर नज़र आएगी। क्लीयर स्क्रीन करने तो बाद मैं इत्थे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, मेरी क्लास का नाम होगा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, क्लास का नाम की सीगा काली, और ऑब्जेक्ट का नाम भी कोई भी यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट रख सकते हो, OBJ कर लो। सो दिस इज ऑब्जेक्ट क्रिएशन। हुण ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, इत्थे इन्हें स्पेस लैनी है, जो तुसीं क्लास बनाई थी वो मैमरी कोई स्पेस नहीं लैनी। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट बनाओगे उन्हें मैमरी स्पेस लैनी है, और वो जी स्पेस है वो डाटा मैंबर के मुताबिक है। क्लास इत्थे कितनियां बाइट्स रिजर्व करेगी, क्योंकि इंट एक्स दिता सीगा, तो इट मीनस की है क्लास इत्थे 2 बाइट्स रिजर्व करेगी। हुण इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं एबस्ट्रैक्शन करनी है, और मैं इंटरफेस जिहड़ा हैगा उहनूं लैना है। मैनूं पता है कि मेरे को इनपुट जिहड़ी हैगी यह प्रोग्राम लैंदा होना चाहिए है। ठीक है, यह प्रोग्राम इनपुट लैंदा होना चाहिए। मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू OBJ डॉट इनपुट नूं कॉल करदा, है की क्या है, दिस इज कॉलिंग है ना, कॉलिंग और मैसेज पासिंग भी आप जो सिंपल शब्दों च गल करनी हो तो मैसेज पासिंग भी जी हैगी आप इत्थे कर रहे हैं है ना, एबस्ट्रैक्शन भी कर रहे हैं इत्थे, ये पार्ट देता यूजर नूं। ठीक है, और इस तरह ही मैं ऑब्जेक्ट के नाल आउटपुट फंक्शन नूं भी कॉल कर लेना है। ठीक है, यह दोनों ही मैं कॉल कर ले। सो ऑब्जेक्ट नूं मैं यूज़ कर लिया। हुण मेन दी ब्रेस जी शुरू हुई सी उन्होंने मैं इत्थे बंद कर दिता है। सो ये साडे कोल जिहड़ा हैगा वो प्रोग्राम बन गया। प्रोग्राम नूं मैं फाइल ते जाके अल्ट F करके खोलो, फाइल ते जाके मैं सेव करदा, नाम मैं ऑलरेडी नूं दे चुका है kali1.cpp। अल्ट F9 दे नाल मैं इहनूं कंपाइल करदा, कंपाइलेशन के दौरान एरर्स आए ने मेरे को। हुण एरर्स की ने कि एंटर करिए आप एरर देखिए, कहना आउटपुट इज नॉट ए मैंबर ऑफ काली, इतने स्पैलिंग मिस्टेक होगी अपन तो। ठीक है, कितने स्पैलिंग मिस्टेक होगी ऊपर जाओ, यह जी स्पैलिंग मिस्टेक है इस चीज़ को जरूर ध्यान में रख लेना। अदरवाइज कंपाइल करने का मतलब ही यह होंदा है कि असी की कर दिता है, कितने गलती की हैगी है उन्होंने असी ठीक कर सकते हैं, इनू डिबगिंग कहते हैं। अपने को हुणे एक वर्ड आया सी ना डिबग, तो मैं जो मैनू इत्थे मेरी गलती पता लगी कंपाइलेशन के दौरान एरर फाइंड आउट किया, उन्हें मैनू एरर भी दस्या, एरर दस्या जिथे एरर सी उत्थे मैं चला भी गया, उत्थे जाके उन्होंने मैं ठीक किया, मैं इन्हू फिर तो सेव कर लिया, फाइल सेव करके सेव हो गया, यस कर दो, अल्ट F9 करके दोबारा कंपाइल करो, देखो सक्सेस हो गया, कंपाइलेशन हुई है। और कंपाइलेशन kali1.cpp नूं कंपाइल किया है, कली kali1.cpp कंपाइल नहीं हुई। देखो तुसीं इन्नियां लाइन्स आप लिखियां ही नहीं हैगियां, पर यह कहता लाइन्स कंपाइल 1048। ठीक है, इट मीनस इन्हें जिहड़ियां असीं iostream.h हैडर फाइल लई सी, conio.h हैडर फाइल लई सी, उन्हां नूं भी नाल नाल कंपाइल किया है। नाउ कोई एरर दबा दिता मैं, वो चला गया डायलॉग बॉक्स, कंट्रोल F9 दे नाल मैनूं एग्जीक्यूट करना है। लिंकिंग की, लिंकिंग के नाल तुहानूं पता पहला मैं .cpp वाला मैं प्रोग्राम बनाया सी, जब मैं उन्होंने कंपाइल किया उन्हें उहदा ऑब्जेक्ट फाइल बना दी, और जब मैं उन्होंने लिंकिंग की उन्हें उहदी एग्जीक्यूटेबल फाइल बना दी। 3 फाइल्स मेनली प्रिपेयर हो जांदियां हैगियां ने। हुण इहदी एग्जीक्यूटेबल फाइल चली है, kali1.exe फाइल बनी होएगी, वो एग्जीक्यूट हुई है, उत्थे मैं तो आउटपुट विच कहंदा एंटर वैल्यू ऑफ x, मैं कोई भी एक वैल्यू दी, मैं 7 एंटर कर दिता, उन्हें मैं वैल्यू ली, चला गया। ठीक है, अल्ट F5 करके देखो आउटपुट दे विच उन्हें दी, पहले उन्हें इनपुट फंक्शन नूं कॉल किया, मैं तो इनपुट लई, हुण उन्हें आउटपुट फंक्शन नूं कॉल करके मैनूं आउटपुट दे दी।
Alt F5 ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ 3 ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ .cpp ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ obj ਫਾਈਲ, ਆਬਜੈਕਟ ਫਾਈਲ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਪਾਈਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕੰਪਾਈਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ तो इन्हें एक obj फाइल kali1.obj फाइल बनाती ऑब्जेक्ट फाइल। बाद में उस ऑब्जेक्ट फाइल में मैं कंट्रोल F9 ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟੇਬਲ ਫਾਈਲ ਬਣਾਤੀ, ਲਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਡਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਫਾਈਲਸ ਕਿੱਥੇ ਬਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਫਾਈਲਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, C++ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੌਂਪਟ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, DOS ਸ਼ੈਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ dir kali 1 star ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋ ਦੋ ਫਾਈਲਸ ਇੱਥੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ kali1 BAK, ਇੱਕ kali1 CPP। ਦੋ ਫਾਈਲਸ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਸੌਰੀ ਹਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਡਾਇਰੈਕਟਰੀਜ਼। ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਕਲੂਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਉਹ TC ਇਨਕਲੂਡ ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਆ ਉਹ LIB ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ ਸੋਰਸ ਤੇ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸੋਰਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਬਿਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ DOS ਸ਼ੈਲ 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਿਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ CD ਡਬਲ ਡਾਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ, CD ਸੋਰਸ ਕਰਦਾ ਸੋਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ dir kali 1 star ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਥੇ kali1.exe ਔਰ kali1.obj, ਮਤਲਬ ਦੋ ਫਾਈਲਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਾਈਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ Alt F9 ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨੇ obj ਫਾਈਲ ਬਣਾਈ, ਔਰ ਜਦ ਕੰਟਰੋਲ F9 ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਸ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਟ ਬਣ ਗਏ ਮਤਲਬ ਮਸ਼ੀਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡੇਬਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡੇਬਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿੰਕ ਅਪ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ exe ਫਾਈਲ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟੇਬਲ ਫਾਈਲ ਬਣਾਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੱਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ 4 ਫਾਈਲਸ ਮੋਸਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ BAK ਫਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ 1-2 ਵਾਰੀ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਈਲ, ਉਹਦੀ ਬੈਕਅਪ ਫਾਈਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਓਰੀਜਨਲ ਫਾਈਲ ਕਦੇ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ BAK ਫਾਈਲ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਨੋਟਸ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ 100% ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਰਨਿੰਗ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।